Very good afternoon, students. Now we come on fourth lecture of numerical method, and in that we will see that is a method which is a Gauss elimination method. So how we have to find the solutions to the system of linear equations by using a Gauss elimination method. We will see here that is a Gauss elimination method. So how we can solve the system of linear equations. There are three equations: a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, then a3x plus b3y plus c3z equals to d3. So that is a given system. And now what we have to do, first we have to write that equation in a matrix form. आप लोगों ने जॉकोबियन ऑफ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन का आपने देखा होगा, M1 में आपको था जॉकोबियन यूनिट, और उसमें आपने देखा होगा कि हाउ टू फाइंड द सिस्टम सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड, और वही यहाँ पे यूज करना है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट डाउन दैट थ्री इक्वेशंस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने ये इक्वेशंस लिख दिए, दैट इज a1 a2 a3 in the first column, then second b coefficient of that, here is a a1, we have to write here not a1 a2 a3, here the coefficient of first equation, that is a1 b1 c1, so we write here a1 b1 c1. Then for the second a2 b2 c2 is here. For the third equation there is a a3 b3 and c3, and here is the coefficients of that, all the constant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 in that respective equations. These are the x y z is here, and that is equals to the constant on the RHS, that is d1 d2 d3, and in this way we get its matrix form of that above equation. When you solve that matrix, again you get the same equations. Now we have what we have to do here, we have to use here row transformation to convert that matrix in upper triangular matrix form. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो एलिमेंट्स रहेंगे दैट एलिमेंट शुड बी अ नॉन जीरो एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स है a2 a3 b3 यू हैव टू कन्वर्ट इट एज अ जीरो. ये जीरो में कन्वर्ट करना है हमको बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड देन वी राइट थ्री इक्वेशंस in terms of x, y and z, and that on solving we get the values of x, y, z. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिया है, so we have to solve that by using that Gauss elimination method. We have written here three equation: x plus y plus z equals to 9, 2x minus 3y plus 4z equals to 30, and 3x plus 4y plus 5z equals to 40. And we have to write down these given equations first in a matrix form. सबसे पहले हम लिखते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में. तो देखिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे. Here is the first matrix, that is the matrix of coefficient of x y z. पहले इक्वेशन में x y z की कोएफिशिएंट that is 1 1 1, so we write here 1 1 and 1. For this second equation there is a coefficient x y z 2 minus 3 4. थर्ड इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट 3 4 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम पुट करेंगे x y z. सो x y z दैट इज इक्वल्स टू, और इस साइड क्या आएगा, ऑन दैट साइड व्हाट वी गेट दैट कांस्टेंट, दैट इज a 9, here is a 30 and here is a 30. So in this way we write that given equations in a matrix form. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. What we have to do, we have to make that in a upper triangular matrix form. तो upper triangular करने के लिए हमें that 2 इसको 0 करना पड़ेगा, then 3 0 and that 4 also 0. तो ये एक एम अपने ध्यान में रखना कि हमें 0 किस टर्म को करना है. So we have to make that term 0. Okay, so we will solve on that side. What we have to do here first, we have to make that 2 as a 0. अब इस 2 को हमें 0 करना है. 2 को 0 करने के लिए रिस्पेक्ट टू दैट फर्स्ट रो R1. So R1
रिस्पेक्ट टू, यू हैव टू मेक दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 0. तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली दैट R2 चेंजेस टू R2 माइनस, हमें पता है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, सो 2 into 1 किया तो it become 2, so 2 minus 2 become 0. So we write that is R2 minus 2R1. So 2 minus 2 into that R1, that is a 1. उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, हमें थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो R3 changes to R3 minus 3R1. Okay, so one by one we have to do that operations. अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो पे यहाँ पे कोई ऑपरेशंस नहीं है, तो फर्स्ट रो जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा 1 1 1. यहाँ पे हम इसको भी एक्स वाई जेड एज इट इज ही रहेंगे आपके, इससे वेरिएबल. अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, सेकंड रो R2 changes to R2 minus 2R1, that is the first. यहाँ पे 2 minus 2 into R1, that is 2 minus 2 become a 0, यहाँ पे 0. उसके बाद अगेन R2 minus 2R1. अब यहाँ पे R2 minus 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, minus 3 minus 2 into R1, यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 है, तो minus 3 minus 2 become a minus 5. तो ये हो गया हमारा minus 5 यहाँ पे. उसके बाद थर्ड एलिमेंट की तरफ आएंगे R2 की, दैट इज 4. यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 minus 2 into R1, that is 1. So 4 minus 2 become a, यहाँ पे 2. So ये हो गया आपका. So in this way we changes that second row R2 minus 2R1 by using that operation. So it becomes 0 minus 5 2. अब यहाँ पे रिस्पेक्ट टू इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है यहाँ पे भी चेक करेंगे. अब फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 9 एज इट इज रहेगा, बट आगे के रो में क्या ऑपरेशन है हमारे, यहाँ पे R2 minus 2R1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 13 है, सो 13 minus 2 into R1, R1 is a 9, so that is equals to 13 minus 2 into 9 18, so it become a minus 5. तो यहाँ पे 13 की जगह आ जाएगा minus 5 by doing that operations. तो ये हो गए R2 के ऑपरेशंस. अब R3 की तरफ आते हैं, R3 changes to R3 minus 3R1. तो यहाँ पे R3 है 3 minus 3R1, that is a 3 minus 3, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट R3 minus 3R1 नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे R3 minus 3R1 4 है, 4 minus 3 into R1, R1 is again a 1, so 4 minus 3 it become a 1. तो यहाँ पे हो जाएगा वो 1, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिखते हैं. उसके बाद आगे यहाँ पे 5 है, सो R3 minus 3R1, सो 5 minus 3 into R1, वहाँ पे भी 1 ही है R1, सो 5 minus 3, सो 5 minus 3 is nothing but 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2. ओके. अब उसके बाद यहाँ पे 14 है, तो आपको क्या करना है, R3 that is 14 minus 3R1, R1 is nothing but a 9 here in that row, R1 is a 9, that is R3, so 14 minus 3 into R1, so 14 minus 27, so कितना आता है, 14 minus 27, that is यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, that here sign is a minus, so it become a minus 30. So in this way we write here minus 30. So एक बार आप लोग अच्छे से ये देखिए. सॉरी, यहाँ पे एक गलती है हमने यहाँ पे की है, यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे 40 है, 40. यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे भी 40 है. अब यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे चेंजेस होगा, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, दैट 40 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 minus 3 into 9, that is equals to 40 minus 27. तो देखो कितना हो जाएगा, 40 27 3, यहाँ पे 1, so it become a, यहाँ पे 13 आता है, that is a 13 is here. एक बार देख लो आप अच्छे से.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। क्या चेंजेस हुए थे, थोड़े से माइनर यहाँ पे, देयर इज नॉट अ 14, देयर इज अ 4 0। सो इन दिस वे वी गेट दैट इक्वेशंस। अब आगे हमें क्या करना है, इस नंबर को भी हमें 0 बनाना है, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा टोटल 0 हो जाएगा। तो अब 1 को 0 बनाने के लिए हमें किसके साथ ऑपरेशन लेना पड़ेगा, इस फर्स्ट के साथ नहीं लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट के साथ ऑपरेशन लेंगे तो जो आपकी ऑलरेडी 0 बनाए हुए हैं यहाँ पे वो चेंजेस होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। सो हमें अदर टर्म्स को 0 बनाना है विदाउट डिस्टर्बिंग प्रीवियस 0। अब ये जो 0 आ गया हमें, हमारे इसको इस 0 को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अब इस 0 को डिस्टर्ब ना करते हुए हमें इसको अगर 0 बनाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू मेक द ऑपरेशन दैट R3 विद रिस्पेक्ट टू दैट R2, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है R2 में और यहाँ पे भी 0। अब कोई भी ऑपरेशन आप R2 का और R3 का लेंगे तो ये 0 डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो अब जो कुछ भी आप R3 के लिए ऑपरेशन होंगे तो R3 विद रिस्पेक्ट टू R2। तो हमें 1 को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, R3 यहाँ पे माइनस से हम प्लस लेंगे R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2। तो देखो अब क्या हो जाएगा, सो वी राइट हियर इन द नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 5 2। थर्ड रो में देखो R3 0 है, 0 प्लस 5 इंटू R2 ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 है, 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे गलत कहाँ पे हो गया हमारा, हमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 5R3 करना पड़ेगा हमें, 5R3 प्लस R2, 5R3 प्लस R2। अब क्या हो जाएगा 5 इंटू R3 दैट इज 5 प्लस माइनस 5, सो 5 प्लस ऑफ माइनस 5 इट बिकम 0। सो ऑपरेशन ध्यान में रखो, दैट इज 5 इंटू R3, इसलिए 5 किया हमने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस 5 है। सो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस ऑफ माइनस 5 दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसके बाद 5R3 दैट इज 5 इंटू 2 10 प्लस ये 2 हो जाएगा, सो 10 प्लस 2 ये हमारा 12 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे XYZ अगेन यहाँ पे एज इट इज, उसके बाद दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे 9 एज इट इज रहेगा, माइनस 5 भी एज इट इज रहेगा। अब ये जो चेंजेस होंगे वो थर्ड रो में होंगे, क्योंकि थर्ड रो में ऑपरेशन क्या है हमारा, 5R3 माइनस प्लस R2, सो 5 इंटू R3 क्या है हमारे पास 30 है, 30 प्लस R2 इज माइनस 5, सो कितना हो जाएगा ये 65 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। सो इन दिस वे यू कन्वर्ट दैट ट्रायंगल दैट मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप एक बार अच्छे से इसको देख लो। अब ये अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो वी राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में अगर जब मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो जाता है, सो यू हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, यू हैव टू राइट डाउन दिस मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब पहला इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू एक्स इट बिकम एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 1 इंटू वाई, सो इट बिकम प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 into z, so it become a z, that is equals to here is a 9। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, माइनस 5 0 into x, तो ये 0 हो जाएगा, so माइनस 5 into y, that is a माइनस 5y प्लस 2 into z, so प्लस 2z equals to माइनस 5। थर्ड इक्वेशन देखो 0 into x 0, 0 into y 0, then plus 12z, so 12z equals to 60। so in this way we get the 3 equations। अब 3 equations आने के बाद एक बात ध्यान में रखना कि जिस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है वहां से आपको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 12z
z equals to 60 है, so you can easily calculate the value of z from that. So how you can write z is equals to 60 divided by 12, so it become a 5. So z is equals to 5 we have get it. So उसके बाद सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में दैट इज इक्वल्स टू 5. सो वी यूज दिस यूजिंग इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में अगर हम 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5y प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू -5. तो बताइए क्या होगा हमारा, दैट बिकम -5y प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10 और ये दैट -5 ट्रांसफर टू दैट साइड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्लस इज इक्वल्स टू -5 रहेगा. सो यहाँ पे -5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है ऑन दैट साइड ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे -50. सो फाइनली व्हाट वी गेट y इक्वल्स टू -50 upon -5, that is equals to 5 3s are 50, minus become a plus, so y is equals to that implies y is equals to 3. तो in this way we get y is equals to 3 आता है ये, और यहाँ पे हमें मिलता है z is equals to 5 मिल रहा है. अब फाइनल हमें निकालना है x, तो x कैसे निकालेंगे, अब यूज करेंगे ये बोथ वैल्यूज यूजिंग इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. हमारे पास z is equals to 5 है, y equals to 3 है, so we write x plus y is a 3 plus z is a 5 equals to 9. तो ये हो जाएगा हमारा x is equals to ये 9 है, 3 plus 5 8, so 9 minus 8 ये हो गया हमारा 1. So x is equals to what we get x is equals to, and in this way we get the values of x, y, z. These are unknowns in the given equations, और जो हमारे इनिशियल इक्वेशंस थे. So in this way we calculate the solution of that, and therefore solution of system of given equations क्या है फिर उसका solution, that is x is equals to 1, y equals to 3, and finally we have here z is equals to 5. So in this way we get that solution. It's a very easy method to calculate the solution of system of linear equation, that is a Gauss elimination method. So see that. Now students, this is the equations. There is a 2x plus y plus z equals to 10, 3x plus 2y plus 3z equals to 18, x plus 4y plus 9z equals to 16. We have to solve it again by using the Gauss elimination method. So first we write in the matrix form. First equation के coefficient of x y z 2 1 1, second के 3 2 3, so we write here 3 into 3, third के है 1 4 9 into here is x y z equals to 10 18 and 16. We write here. अब हमें क्या करना है, we have to use a row transformation to make that matrix in the upper triangular form. So हमें 3 को 0 बनाना है, 1 को और 4 को. तो सबसे पहले हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे R2 R3 पे रिस्पेक्ट टू R1. तो क्या चेंजेस होगा हमारा, R2 चेंजेस टू R2. अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें तो यहाँ पे 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, यस हम करेंगे R2 changes to 2R2 minus 3R1. उसके साथ हमें इसको भी 0 करना है, तो R3 कैसे चेंज होगा हमारा, R3 changes to 2R3 minus R1. So then we can get the respective matrix. तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, राइट हियर यहाँ पे ये x y z एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 10 18 एंड यहाँ पे 16. तो फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, सो दैट इज अ 2 1 1, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 3 2 3 है, तो R2 चेंजेस टू 2 R2 minus 3 R1, 2 into
दैट इज 6 माइनस 6, ये हो जाएगा 0। उसके बाद 2r2 दैट इज 2 into 2 इट बिकम 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 2 minus 3 into r1 that is 3 into 1, so it become 4 minus 3 that is 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट 3 है यहाँ पे 2r3, so 2r3 is nothing but 2r2 that is 6, 6 minus 3r1 that is 3 into 1 that is 3, it become 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। उसके बाद थर्ड रो पे आते हैं हम। थर्ड रो के लिए क्या ऑपरेशंस है 2 into r3 that is 2 into r3 that is 2 into 1 2 minus 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद 2 into 4 8, 8 minus 1 that is 7। उसके बाद 2 into r3 that is 9 into 2 it become 18 that is 2 into 9 minus r1, r1 है हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 minus 1 that is 17, तो ये हो जाएगा हमारा 17। अब यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे रिस्पेक्ट टू चेंजेस टू दैट मैट्रिक्स आल्सो। तो फर्स्ट r2 के लिए चेंजेस होंगे। r2 के लिए कैसे चेंजेस होंगे दैट इज 2 r2 minus 3r1, तो 2 into r2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 18 minus 3r1, 3r1 that is 3 into 10, तो ये क्या हो जाएगा 18 into 2 36 minus 3 into that is 30, और ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे आ जाएंगे 6। उसके बाद r3 के लिए ऑपरेशन है 2 into r3, 2 into r3, r3 है हमारा 16, 16 minus r1 that is 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 minus 10, तो ये हो जाएगा हमारा 22, ये हो गया 22, यहाँ पे लिखेंगे हम 22। तो इन दिस वे वी गेट दैट मैट्रिक्स आफ्टर डूइंग दैट टू ऑपरेशंस। एक बार ध्यान से सभी स्टेप्स आप अच्छे से चेक करो। अब आगे की स्टेप की तरफ आएंगे हम। अब यहाँ की जो टर्म है ये हमें जीरो करनी है, यहाँ पे 7 है, 7 को जीरो करना है। अब हम रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे r2 रिस्पेक्ट टू इसको जीरो करेंगे, क्योंकि r1 के रिस्पेक्ट टू किया तो ये जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जीरो है, r2 में भी जीरो है, r3 में भी जीरो है। सो जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लेते हैं r3, तो r3 कैसा चेंजेस होगा हमारा r3 चेंजेस टू r3 माइनस, हमें पता है यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, सो r3 माइनस 7 r2। तो देखो अब क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा x y z, फर्स्ट रो भी हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशंस नहीं हमने करने हैं वहाँ पे। सेकंड रो भी एज इट इज रहेगा दैट इज 0 1 3। अब थर्ड रो में क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, सो 0 माइनस 7 into 0 इट बिकम 0। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 7 माइनस 7 into 1, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 माइनस 7 into 3, तो हो जाएगा 21। तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 17, तो कितना आएगा 21 माइनस 17, दैट इज यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा। सो -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा -4, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिस्पेक्टिव चेंजेस होंगे। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा हमारा 10, सेकंड रो 6 भी एज इट इज रहेगा। थर्ड रो में चेंजेस क्या हो रहे हैं, दैट इज ये चेंजेस यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा। r3 है यहाँ पे 22 माइनस 7 into r2, r2 है हमारा 6, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 42, तो 22 माइनस 42 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा माइनस, ये होगा हमारा -20, तो यहाँ पे आ जाएगा -20। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में आ गया। अब हमें इक्वेशंस तैयार करने हैं। तो अब इक्वेशंस क्या मिलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into x प्लस 1 into y that is y plus z equals to 10। सेकंड
0 रुपये, so it becomes 0, 0 plus y plus 3z equals to 6. थर्ड इक्वेशन होगा 0 रुपये 0, 0 into y 0 है, यहाँ पे minus 4z equals to minus 20. ओके, सो क्या मिलेगा फिर? अब जैसे हमारा थर्ड इक्वेशन है एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में, z के फॉर्म में है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4 5 हो जाएगा। सो z इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 5। उसके बाद z इज इक्वल्स टू, सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू 5 यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे? यूजिंग इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 में अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यस, वी गेट अ y। तो यहाँ पे z हमने 5 पुट कर दिया, ये 6, और यहाँ पे क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू, ये तो 3 into 5 15 हो जाएंगे, ये प्लस 15 हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 6 minus 15 हो जाएंगे। अब 6 minus 15 कितने होते हैं? यानी कि -9। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? दैट y इज नथिंग बट -9। y हो गया हमारी -9। अब उसके बाद y और z दोनों पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो वी यूज इट 1 में चेंजेस देखो अब क्या है? 2x plus -9 plus z and 5 equals to 10. So what we get here? 2x minus 9 plus 5, and -9 plus 5 is nothing but a -4 equals to 10. So that implies 2x is equals to 10 plus 4. So 10 plus 4 ये होगा हमारा 14. So finally what we get? X is equals to 14 divided by 2, that is nothing but a 7. So in this way we get x y z, x is equals to हमें मिल रहा है 7. So in this way we get that 3 very unknown, that is x is equals to 7, y equals to -9 and z is equals to 5, which is the required solution. ये है हमारा required solution for the given system of equations. So hope you understand that all part. It's a very easy part to solve these equations by using a Gauss elimination method. यहाँ पे और एक मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है, 10x plus 2y plus z equals to 9, 2x plus 21 minus 2z equals to -44, minus 2x plus 3y plus 10z equals to 22. You have to solve it again by using, यहाँ पे क्या यूज करना है हमको? Again you have to use here Gauss elimination method. So solve this all the system of equations. ऐसे ही फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है आपको, और उसके बाद आपको 3 इक्वेशंस निकालने, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड x y z। वो कैसे करना है आप लोगों को अब ध्यान में आ ही गया होगा। सो वी विल स्टॉप हियर।